Vikas just cleared PMP. It has been a long journey. Even from my student's perspective, it was a good amount of journey, and I want to put into that Vikas did very hard work. Vikas did very hard work. It's not without hard work that this is done. And as Vikas mentioned, if I read it, it has truly been a long 2.5-year journey filled with struggles, pauses, and moments of self doubt. There was a phase when I even stopped responding to Amir sir, unsure and disconnected from my goal. But he never gave up on me. Instead, he sent Mohit Malhotra into my life like an angel who said, with full confidence, I'll make you PMP. Just follow my step by step instruction. That belief changed everything. Mohit, by your constant follow up, structured approach, and personal dedication kept me on track throughout. You didn't just teach, you transformed my mindset and built my confidence step by step. This being my first certification after such a long gap, make it even more special. I have learned so much beyond just PMP, discipline, consistency, and clarity of thought. A heartfelt thank you to Amir sir for his patience and belief in me and sending such a tremendous coach. I will always be grateful to both of you. The name of this journey is discipline, consistency, and clarity of thought. Vikas Saab, I'm more than proud that you can feel. And I do not want to share this journey. You will share in English, Urdu, Hindi, whatever you want, your choice. You and your coach will share. I'm just a spectator. Please, Vikas Saab, over to you. सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा बिकॉज यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने जो है मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं पीएमपी कर सकता हूँ। बिलीव मी, मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। आपने आपने समझे बेस बनाई मेरी कि मुझे वो मोटिवेट किया कि आई कैन डू इट। और जस्ट बिकॉज मैं एक बहुत बड़ा स्टडी का गैप था, मैंने यानी ऑलमोस्ट 2009 के बाद बुक्स को टच नहीं किया था। लेकिन 2000 आई थिंक 24 में मैंने आपको ज्वाइन किया था। उसके बाद आप मैं अपने एफर्ट की ऑलमोस्ट 3 to 4 months हमने इकट्ठे काम किया। उसके बाद मैं आप वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था आपसे। मैंने आपने मुझे फॉलोअप करना नहीं छोड़ा। द गुड थिंग अबाउट यू कि आपने मुझे फॉलोअप करना नहीं छोड़ा। यानी पहले आप मुझे फॉलोअप करते रहे, फिर मुझे मोहत ने काफ़ी दफ़ा अप्रोच किया। और उसके बाद जो है फिर मैंने कहा यार, उन्होंने मुझे बहुत आपने भी बहुत पुश किया, उन्होंने भी बहुत पुश किया। फाइनली आई थिंक आई इट टुक 2.5 years टू कम बैक ऑन ट्रैक एंड फाइनली आई डिड दिस वन पीएमपी। नो डाउट इसमें मेरी स्ट्रगल है, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा आपकी गाइडेंस है, आप लोग दोनों की गाइडेंस है, सपोर्ट है और मोटिवेशन है जिसने मुझे ये गोल अचीव करने में हेल्प की। मैं Good. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा Mohit, that to achieve this goal। जी सर। Mohit, over to you. सबसे पहले तो आई डोंट नो, आई मीन इफ आई एम लकी और व्हाट। जब मैंने इनसे कांटेक्ट किया वो कैसे साहब से, तो इन्होंने जब मेरे को जैसे रिप्लाई किया, एंड देन मे बी इन फर्स्ट और सेकंड डिस्कशन इन्होंने प्रोएक्टिवली कहा कि हाँ भी मैं एग्जाम बुक कर रहा हूँ। मैं क्या, जाएं प्लीज बुक करें। एंड देन फिर उसके बाद थोड़ा हमने एग्जाम आगे रीस्केड्यूल भी किया। एंड कभी कभी बीच में ऑफ ट्रैक भी हुए, लेकिन ही वॉज responding to me, not, if not daily, but at least weekly, 3-4 times at least he was doing that. And जब इन्होंने दिसंबर नवंबर से, he was consistent last year, he was consistently been responding। इतने struggles के बाद when he was staying alone in Saudi without his family, he was till
late night 4 o'clock, 5 a.m. in the morning. He was doing it. He was sleeping only for 2 hours and then going to the office. Even before the exam on Saturday last week, पूरी रात नहीं सोए. And then he did two 180 mocks. I told him specifically कि आप बंद करें, mock नहीं करना है, because just before the 2-3 days of the exam, you should not drain yourself. You should not be, you should not take that much of tension. But इन्होंने नहीं माना और इन्होंने 2 mocks करके ही छोड़े. Or because he wanted to do it. And then next day he went to the office just after sleeping for 2 hours. एंड देन मैंने स्पेसिफिकली कहा कि अभी एग्जाम से 1-2 दिन बचे हैं, प्लीज यू शुड हैव अ प्रॉपर स्लीप ऑफ 8 to 9 hours, विच ही डिड. एंड मैंने कहा सिर्फ 2 दिन की बात मान जाइए, उसके बाद अब कुछ भी हो, वेंसडे के बाद आप चाहे नहीं भी मानेंगे मैं आपसे फॉलो भी नहीं करूंगा. सिर्फ ये 2 दिन की बात मान जाइए, विच ही डिड. एंड माशाल्लाह ही इज नाउ अ सर्टिफाइड, प्राउड सर्टिफाइड पीएमपी. सर इसके पीछे ये है कि एक तो आपने मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी कि आपने मेरी एक्सपेक्टेशन, और मुझे बड़ा वो हो रहा था कि मैं आपकी जो एक्सपेक्टेशन कैसे मीट करूं. इस वजह से मैंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट की, क्योंकि आपने मुझे एक तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया, एक्सपेक्टेशन भी मेरी बहुत आई की, और मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी हुई थी. मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा था, इस वजह से जो है मैंने अपनी तरफ से फुल डिलीवर करने की कोशिश की. तो मैं नहीं चाहता था कि आपको किसी तरीके से डिसअपॉइंट किया जाए. तो इसके पीछे ये था कि मैंने अपनी कंफर्ट वेयर ऑफ कॉम्प्रोमाइज इसी वजह से किया कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट किया. यानी मैं दिन को रात को जब भी होता था, मैं मोहम्मद भाई को मैसेज करता था, आप फ़ौरन मुझे उस पर रिस्पॉन्ड करते थे. डेफिनेटली वो चीज़ें मुझे भी घर वाले पुश कर रहे थे, यार एक बंदा तुम पे इतनी एफर्ट कर रहा है, यू हैव टू डू इट. यस. अपने लिए नहीं, कम से कम उसी के लिए. तो फिर मुझे और ज़्यादा मैं जो है वो कर रहा था, जी जी. एफर्ट कर रहा था. मैं आप लोगों को एब्सोल्युटली. ना ये बता नहीं सकता लाइक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज कि लाइक इट्स बीन मल्टीपल टाइम जब भी मुझे मोहित ने कहा कि सर इसका ये, मैं कहना तेरा मसला है. आपसे सर, ये सर आपसे सर, ये आपसे अपोलोजाइज भी करूंगा, क्योंकि आपने मुझे काफ़ी दफ़ा अप्रोच किया. मैंने कुछ जानबूझ के और कुछ कॉन्शियसली कुछ अनकॉन्शियसली आपको हो गया, क्योंकि आप हमेशा मुझे पुश कर रहे थे कि गो फॉर पीएमपी, गो फॉर सर्टिफिकेशंस. मैं उस वक्त तैयार नहीं था उस वक्त. लेकिन ये है कि द बेस्ट थिंग अबाउट यू एंड योर टीम इज दैट कंसिस्टेंट फॉलोअप. मैं कहता हूँ आज अगर मैं मोहब्बत भाई से भी कह रहा था कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सी सर्टिफिकेशंस की हैं, ट्रेनिंग्स की हैं, लेकिन मैं कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि ये वाइड प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं सर्टिफाइड हुआ हूँ. और बिकॉज ऑल द क्रेडिट गोज टू यू गाइस, योर टीम एंड योर फॉलोअप्स, कंसिस्टेंट फॉलोअप, जो जिसने मुझे जो है इस मुकाम पे पहुंचाया कि फाइनली आई वाज फाइनली पीएमपी सर्टिफाइड. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, अच्छा मुझे बताएं एग्जाम कैसा था. सर एग्जाम एज कम्पेयर टू इट वाज टफ था. इतना टफ भी नहीं था, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो सिचुएशनल क्वेश्चंस थे. बहुत कम एजाइल भी आया, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशनल क्वेश्चंस थे, और स्टेक होल्डर और टीम बहुत डोमिनेट था उसके अंदर. परफेक्टली फाइन. अच्छा, और कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड था. मुझे ज़्यादातर एक प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड कम ही आए. ज़्यादातर मुझे टीम से आया, स्टेक होल्डर से आया, कास्ट से एक दो आए, और क्वालिटी से भी था. ज़्यादातर डोमिनेट जो है वो स्टेक एजाइल और वो स्टेक होल्डर था, और टीम था. एजाइल और टीम, ओके. और मोस्टली सिचुएशनल क्वेश्चंस थे जो आपने. ओके, और ड्रैगन ड्रॉप कितने थे. एक ड्रैग एंड ड्रॉप बर्न अप चार्ट का था. बर्न अप चार्ट का. और फॉर्मूला क्वेश्चंस. फार्मूला क्वेश्चंस नहीं थे. फार्मूला क्वेश्चन नहीं थे. फार्मूला क्वेश्चन नहीं थे. मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन जो सिलेक्ट करने वाले थे वो इस बार डोमिनेट थे. वो मेरे ख्याल में कोई 10 to 15 थे मल्टीपल ऑप्शंस, यानी यू हैव टू सिलेक्ट 3 2 लाइक दिस. ठीक है. फर्दर और कौन सा टॉपिक ऐसा था जो कि सबसे मुश्किल लग रहा था एग्जाम में. एग्जाम में
मुश्किल तो क्योंकि अगर आप यानी मोस्टली जो है वो द टफेस्ट थिंग था ये कि क्वेश्चन बहुत लेंथी थे और कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा थे आपको, यानी बहुत ज़्यादा आपको वो सिचुएशनल क्वेश्चन ज़्यादा थे सर, जो कि बंदे को घुमा देते थे, थोड़ा सा टफ टफ दे रहे थे। हम्म, एजाइल से भी रिलेटेड थे लेकिन एजाइल इतना कंफ्यूजिंग था जितना वो थे दूसरे क्वेश्चन थे। ठीक हो गया, परफेक्टली फाइन हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आज आप अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर आज अपनी जर्नी दोबारा, क्या चीज़ें आप इसमें डिफरेंट करते हैं? अगर मैं अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट करता आज पहला तो दिन क्या है, डिफरेंट करता? आज अगर आज आपको दोबारा मिलता है, पहले दिन से करते क्या करते हैं चेंज? तो मैं सबसे पहले जो है आपकी गाइडेंस को फॉलो करता, जो जो आप कहते हैं मैं उसको फॉलो करता, मैं अपना जो दिमाग ना यूज करता। ये एक बिग डिफरेंस, क्योंकि मैंने आपको फॉलो कर रहा था लेकिन मैं बीच बीच में डिट्रैक्ट भी हो रहा था। तो ये कि मेरे नज़दीक अगर आप जो है एक इंस्ट्रक्टर और उसी को फॉलो करें और उसी की गाइडेंस को फॉलो करें, दिस इज बेस्ट थिंग आपको मेरा सक्सेस क्वेश्चन पाने ये, के लिए। अब मेरा क्वेश्चन है, पहले क्यों नहीं किया आपने? बस नहीं नहीं, मैं कह इसलिए सकते हैं आप। इसलिए प्रकाश, मैं देखें, मैं आपको, मैं सिर्फ नॉलेज के आपसे लिए कर रहा पूछने था। आपसे पूछने का, आपको कहने का मकसद ये नहीं है कि किसी तरह मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, पीएमपी हो गया, स्टोरी खत्म। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगले स्टूडेंट के साथ ऐसा क्या डिफरेंट करता जो मैं आपके साथ नहीं कर सका। नहीं, आपने आपने मेरी तरफ से, मैं कहता हूँ मतलब कि आपने अपनी तरफ से 100% किया, बट 100% ही 150% किया। ये मेरी थी कोताही कि मैं हो सकता है एक साल पहले हो जाता सर्टिफाइड, लेकिन जो मैं ऑफ एंड ऑन रहा, और क्योंकि मैंने जॉब भी स्विच की थी, मैं पहले जद्दा में था फिर रियाद में आया। यहाँ पे डिफरेंट काइंड का एनवायरनमेंट था, डिफरेंट काइंड की सिचुएशंस थी और डिफरेंट काइंड का वर्क लोड था। तो उस वजह से मैनेज करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो आपको भी और उन नई जॉब को भी इस वजह से थोड़ा सा, हालांकि मैंने जो है इसको जो स्टार्ट किया था एज अ नॉलेज के लिए किया था कि हाँ जी मुझे पीएमपी का नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेशन का मैंने माइंड सेट नहीं था। लेकिन फिर आस्ता 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 आप लोगों ने और मोहित भाई ने आपने मुझे पुश किया कि गो फॉर सर्टिफिकेशन। जब आपने सर्टिफिकेशन का किया और मैंने देखा कि यार इस पास वेरी टफ, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्तों ने पीएमपी की 2-3 दफ़ा अटेम्प्ट किया, वो नहीं कर पाए। तो मैं आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं कर सकता हूँ। तो इस वजह से जो है मैं जो है वो ऑफ एंड ऑन रहता है, मैं कंसिस्टेंट नहीं था। ठीक है। और मैंने देखा कि इसको पास करने का एक ही तरीका है, कंसिस्टेंसी और गाइडेंस, बस। ओके, परफेक्टली फाइन। और कोई चीज़ आप शेयर करना चाहें? एग्जाम सऊदीया में दिया आपने? जी जी, एग्जाम सऊदी में दिया। फैमिली जो है बैक एट देयर है, घर है वापस? जी जी, वापस आ गया हूँ। परफेक्टली फाइन। थैंक यू वेरी मच विकास। बच्चों को ऐसे तो थोड़ा आपने मुश्किल हो ग्रेजुएशन रहा था मुझे। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट की थी? सर मैंने ग्रेजुएशन 2009 में की थी। हम्म, इतना आपका एक्सपीरियंस नहीं है जितना आप कहते हैं कि वो रमन को देखो 1991 में ग्रेजुएट हुआ है, वो राशिद को देखो 1988 में हुआ, आप तो यंग है। मोहित, तुमने कब ग्रेजुएशन की थी? मैंने 2008 में। बस। ऑलमोस्ट सेम एज ही है। आप बात करते हैं, देखिए पता क्या बात है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम अपना प्रिज्म जो है ना वो देख रहे होते हैं कि भाई मैंने जो किया है ना, वो तो, लाइक, मेरी मोहित बात होती थी, अब होता है सेल्स के लिए, क्लाइंट, जी। 5 साल का एक्सपीरियंस होता है मुझे, 5 साल हो गए हैं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं। मैं कहा यार क्या बात कर रहा है, 5 साल, ये कौन सा अच्छा। 5 साल ऐसा कौन सा होता है, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीएमपी की। ठीक है। सीरियसली। इसी तरह देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इस जर्नी में बात करना चाहता हूं मैं। दिस वाज जस्ट अ प्रिजन जो आपने अपने इर्द गिर्द बनाया हुआ है, इस जगह पे, इन कानों के दरमियान में। ठीक है ना, कि मुझे इंजीनियरिंग मुझे किए इतना अरसा हो गया, कुछ भी टाइम नहीं हुआ आपको भाई। 2008-9 में पास हुए हो, 16 साल हुए हैं। ये तो मेरा नॉर्मल एवरेज टाइम है। सर मैं एक जो है वो प्रोग्रामर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मेरा मैनेजमेंट की तरफ का कोई वो एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। जैसे मैं कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि प्रोग्रामर आपको पता हमारा जो ज़्यादातर एक स्टोर जॉब है हमारी। हम एक कमरे में होते हैं और वहीं पे हमें टास्क मिलते हैं, हम उसी को करते रहते हैं। यानी और पीएमपी मोस्टली जो है वो हाउ टू इंटरेक्ट पीपल, हाउ टू मैनेज पीपल। पीपल ये आपको
पीपल मैनेजमेंट और लोगों के साथ इंटरेक्शन सिखाता है पीएमपी। और हमारा एज अ प्रोग्रामर जो हमारी फील्ड जो है वो डिफरेंट है थोड़ी सी, तो इस वजह से दोनों को जो करना जो है थोड़ा सा टफ लग रहा था मुझे। ठीक है, ठीक हो गया। चले, नाउ यू यू आर सर्टिफाइड पीएमपी, राइट? नाउ यू आर सर्टिफाइड थैंक यू सर। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, चल। थैंक यू बहुत, थैंक यू सर।